here AC सर्किट कंटिन्यू कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। अगर AC सर्किट में रेसिस्टर और कैपेसिटर है, इन रेसिस्टर द करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। हियर VR and I both are in the same phase. In case of capacitor, the current leads pi by 2 phase. Current lead करती है pi by 2 phase. Here VC and here it is I. It is pi by 2. हम सिंगल सर्किट में पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स पाई बाय 2 फेज। इन इंडक्टर करंट लैग्स पाई बाय 2 फेज। इन केस ऑफ रेसिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब अगर करंट जब मैक्सिमम होता है, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम। इसमें लैगिंग होती है, इसमें वोल्टेज that leads pi by 2 phase. It means current here voltage lag करता है with respect to the current. ये सेपरेट सर्किट में हम लोग पढ़ चुके हैं। From this circuit we find that current and voltage in resistor are in the same phase. In capacitor current leads pi by 2 phase with respect to the voltage. Therefore, from this circuit we find the phasor diagram. What will be the phasor diagram? Phasor diagram, here we see VC downward and this is VR. This is VC and this is VR. Both are at right angles. Here VR, this is VC. Then what will be the resultant here? Let it is VZ. Then VZ is equal to, ध्यान में रखना, इन केस ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। एक तरह से पैरेललोग्राम वाला वेक्टर अगर यूज करें तो VZ इज इक्वल टू हियर मैक्सिमम करंट इट इज I नॉट I R V इज इक्वल टू IR स्क्वायर। इस पर हम करें VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। इसको हम मैग्नीट्यूड के रूप में चाहे ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो दिस इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर I नॉट स्क्वायर XC स्क्वायर। इम्पीडेंस, ये रिएक्टेंस हमने बताया था कि रिएक्टेंस माने रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नोन एज द रिएक्टेंस। एंड ये हमारा रिएक्टेंस है XC और ये रेसिस्टेंस है। रिएक्टेंस वो चीज है दैट applies that opposes the current without loss of power, उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। ध्यान में रखना, XC जो है रिएक्टेंस है, ये अपोज तो करता है बट नो पावर लॉस। रेसिस्टर रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्ट करता है बट देयर इज ए लॉस ऑफ पावर। सो हियर इट इज I नॉट के रूप में लेते हैं, इट इज R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर and it is VZ. Therefore Z is equal to impedance, इसको कहते हैं कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफर्ड
Vz upon I naught, it is equal to R square plus X square, and thus Z is equal to R square plus X is equal to 1 upon omega C, 1 upon omega square C square. This is the rule. Here, this is the impedance. Here we see current lead phase phi. What will be the tan phi? Tan phi is equal to VC upon VR. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो VC upon VR. And what is the VC? I naught XC upon I naught R. So here tan phi is equal to XC upon R. XC it is what? 1 upon omega C. So 1 upon omega CR. XC it is equal to 1 upon omega C. So phi is equal to tan phi 1 upon omega CR, and phi it is equal to tan inverse omega CR. This is the phi. Here current, the lead phase phi from phasor diagram, we find that we will write as from phasor diagram, we find that current leads phase phi with respect to VC, with respect to VZ. Therefore, I is equal to I naught sin omega t plus phi. Or phi is equal to tan inverse 1 upon omega CR. This is the case when the AC circuit containing the capacitor and the resistor. और एक लास्ट है LCR, यही सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसे पूछा जाता है. AC सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेसिस्टर. इसको लिखते हैं सीरीज LCR. सीरीज LCR. अब तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे. Now here AC circuit containing the resistor, capacitor, here AC is fed
E naught sin omega t, it is R, it is C, it is B. In case of resistor, current and voltage are in same phase. Here current I, voltage VR are in same phase. In case of capacitor, current lead VC, this is the I, current lead phase Y by 2. And in case of inductor, current lags phase phi. Here, this is the VL, inductive voltage, and it is the I. And current lags phi by 2. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फेजर डायग्राम बनाएंगे. Here we see that VL and VC are in opposite phase. VC downward, VL upward. So if VL VC है इक्वल है तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज 0. लेकिन if VL is greater than VC, then रिजल्टेंट वोल्टेज अपवर्ड होगा ना. तो फ्रॉम the circuit diagram we find that from circuit diagram we find that the VR and I are in same phase. VR and I are in same phase. VL and VC are in opposite. VL and VC are in opposite phase. ये अपोजिट फेज में होगा. केस फर्स्ट लेंगे. इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर VL VC से बड़ा है, then what will happen? Here VL minus VC, and here VR, it is VR. Here VR, this will be VZ, resultant voltage. Then phasor diagram, इसको लिखेंगे. This is the phasor diagram. If VL is greater than VC, तो VL अधिक है, VC डाउनवर्ड है, तो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज VL minus VC, and this is VR. Then what will be the VZ? Therefore VZ is equal to, from phasor diagram we find that VZ is equal to root VR square plus VL minus VC का होल स्क्वायर. Here VR I naught R square, I naught square R square plus here I naught
XL minus I naught XC whole square, and thus Vz is equal to a resultant voltage. It is I naught take out common, and this is R square plus XL minus XC whole square. So Z is equal to dZ upon I naught. It is R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. Here Z it is known as the impedance. इसे impedance कहते हैं आप combined circuit. Impedance. Impedance का मतलब combined resistance offered by a circuit is known as the impedance. Combined resistance offered by the circuit is known as the impedance. Abhi, here we find that it is, if the resultant voltage is makes angle phi with VR, then what will be the cos phi? Cos phi is equal to VR upon root Vz. Or Vz means that R square VR, that will be equal to VR square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. तो V इज इक्वल टू आई आर को हम ये लिख सकते हैं R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XL बाई XL बाहर ले लेंगे, BL बी ए जो BL BC ले लेंगे, BL माइनस BC. तो BL इज इक्वल टू आई XL, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर. एक तरह से हमारे पास cos phi की वैल्यू आ जाती है. ये देख लेना cos phi equal to this much. It means current lags from the phasor diagram current lags phase phi. VR और I दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखना. VR और I सेम डायरेक्शन में होते हैं. तो ऐसी स्थिति में करंट लैग कर रही और वोल्टेज लीड कर रहा. तो रिजल्टेंट फ्रॉम फेजर डायग्राम, द करंट लैग्स फेज phi with respect to the Vz. You can note down from the phasor diagram we find that the current lags phase phi with respect to the resultant voltage. With respect to the resultant voltage, then I is equal to I naught sin omega t minus phi. I is equal to I naught sin omega t minus phi. Here if that was the first case, if VL is greater than VC, if VL is less than VC, then what will happen? If VL is second case, if VL is less than VC,
then what will happen? It means resultant voltage हो जाएगा VC माइनस VL। तो VL और VC जो अपोजिट डायरेक्शन में थे, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगा कि VC माइनस VL, और वैल्यू हमारे पास इट इज VR, एंड रिजल्टेंट फेजर डायग्राम हमारा जस्ट हो जाएगा। एंड इन दिस केस व्हाट विल बी द BZ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BZ इट इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस BC माइनस VL का होल स्क्वायर। सो BC माइनस VL का होल स्क्वायर, तो VC माइनस VL होल स्क्वायर लिखें या VL माइनस VC होल स्क्वायर, वैल्यू रिमेन द सेम। तो BZ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर सिर्फ पड़ेगा फाई में। अब तक करंट लैग कर रही थी, अब करंट लीड करेगी विथ रेस्पेक्ट टू द VZ। सो VR is equal to this much, and in this case from phasor diagram here what will be the impedance वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर इम्पीडेंस। फाई में भी कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन करंट की वैल्यू जो है फ्रॉम द फेजर डायग्राम करंट लीड फेज फाई, इसमें करंट लैग कर रही थी, अब करंट लीड करेगी। करंट लीड्स फेज फाई with respect to VZ, and thus current is equal to I naught sin omega t plus phi। In this case ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि what will be the lagging, what about the current in case when VC is greater than VL, current leads, lag, no change। तो सब में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। इम्पीडेंस, रिजल्टेंट वोल्टेज, वैल्यू ऑफ फाई, देयर इज नो चेंज, बट करंट in this case current lead phase phi with respect to the resultant voltage। और थर्ड केस है when VL is equal to VC। so last case third, if VL is equal to VC, case third, if VL is equal to VC, then VZ is equal to VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इट मीन्स VL VC इक्वल हो गया, इट मीन्स VR स्क्वायर प्लस 0 दैट इज VR। इट मीन्स सर्किट इज प्योर रेसिस्टिव, circuit is pure resistor circuit, It means role of VL and DC will be negligible and circuit will be pure, this circuit is pure resistor circuit, and in this case I is equal to E naught upon
I equal to E upon R square plus XL minus XC का whole square. And here if BL is equal to BC, then BL is equal to BC, then what will happen? IXL is equal to IXC. So XL is equal to XC. So XL, XC 0, it means I naught is equal to E naught upon R. मतलब maximum current in the circuit. In this case, the maximum current flows in the circuit. Here, I naught is equal to E naught upon R. It means, in this case, maximum current flows through the circuit. Maximum current flows through the circuit. सर्किट में इस समय मैक्सिमम करंट फ्लो होती है. This condition is known as the resonance condition. This condition is known as resonance condition. This condition is known as resonance condition. इसे ही रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, ध्यान में रखना. दिस कंडीशन इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन. इट मीन्स इन द रेजोनेंस कंडीशन करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम, एंड दिस मैक्सिमम करंट occurs at a particular frequency. Here you see VL is equal to BC. It means IXL is equal to IXC. Here XL 1 upon XL is omega L, XC is 1 upon omega C. This is omega square 1 upon LC. So omega is equal to 1 upon root LC. Omega is 2 pi f. So 2 pi f R लिखते हैं 1 upon root LC. एफ आर को कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ध्यान में रखना. दिस इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ आर. सो एफ आर इट इज इक्वल टू, ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही रेजोनेंस आकर करता है. इट इज 1 upon 2 pi root LC. This EFR is known as resonance frequency. Resonant frequency. Resonant frequency. उस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं, इस फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं. रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यह एक्सीएल इज इक्वल टू एक्सी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे होता है. दैट फ्रिक्वेंसी इट इज इक्वल टू 1 upon 2 pi root LC. दिस इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम. और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यह एप्लीकेशन रेजोनेंस किसमें यूज किया जाता है? रेडियो की ट्यूनिंग में, टीवी में. रेडियो की ट्यूनिंग में क्या करते हैं कि रेडियो कभी बजाए हो ना, सब लोग थोड़ी बहुत कभी देखे हो ना रेडियो. रेडियो में हम नाब को ट्यून करते हैं. तो नाब को जब घुमाते हैं तो उसमें LCR सर्किट होती है. LCR सर्किट मतलब इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है. और जब हम हर रेडियो स्टेशन की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, स्पेस में इमिट कर रहे हैं. और जब हम इसकी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करके घुमा करके उस फ्रिक्वेंसी से मैच करा देते हैं
उस केस में जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर जब एक्सीएल एक्सी के बराबर हो जाए, उस केस में सर्किट में मैक्सिमम करंट हो जाती है, तो हम केवल उसी स्टेशन की आवाज़ सुनते, दूसरे स्टेशन की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। और उस केस में हमको अगर कायदे से रेजोनेंस नहीं हुआ तो हमें म्यूजिक के साथ साथ बगल बगल से थोड़ा थोड़ा न्यूज भी आता रहता। रेडियो में ध्यान दो, अगर ट्यूनिंग बढ़िया से नहीं हुई तो ये म्यूजिक आ रही है तो बगल से थोड़ा सा वो भी आ रहा है, न्यूज भी आ रहा है। इट मीन्स रेजोनेंस ठीक से नहीं हुआ। जैसे क्लास में जिस बच्चे का रेजोनेंस क्लास के साथ हो गया, उसे सिर्फ बोर्ड दिखाई पड़ेगा, उसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी समझने की बोर्ड की तरफ। जिसका रेजोनेंस क्लास में नहीं होगा ठीक से, मतलब क्लास की फ्रिक्वेंसी के साथ जिसका मैच नहीं करता, वो बच्चा लगातार बात करता। अभी कोई था ना जिसका रेजोनेंस नहीं हुआ, लगातार आवाज़ आ रही, तो वो रीजन यही है। और ऐसे लोग किस कहीं के नहीं हो पाते, न म्यूजिक सुन पाते हैं, न समाचार सुन पाते हैं। रेजोनेंस ऐसा बच्चा न क्लास का हो पाता, न अपने परिवार का हो पाता, न समाज का हो पाता, कहीं का नहीं हो पाता। इस नाते क्लास में आते समय रेजोनेंस जरूरी है। क्लास के साथ अगर रेजोनेंस नहीं हुआ, माने योर फ्रिक्वेंसी शुड मैच विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, एंड इन दैट केस मैक्सिमम करंट विल फ्लो, maximum knowledge will flow in your mind, and that will give the maximum result in your life. The same happens here also. If the applied frequency is equal to the natural frequency, ध्यान में रखना, उधर applied frequency है, इधर एक natural frequency, जब दोनों को मैच करा देते हैं तो maximum current flows in the circuit, and in that case we are able to hear a particular news or music. तो हम स्पेस में इतनी फ्रिक्वेंसी इमिट हो रही है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही हियर कर पाते हैं। पर्टिकुलर नहीं बोलता है आकाशवाणी गोरखपुर वाराणसी ऐसे बोलता है, इस सब सारे रेडियो स्टेशन फ्रिक्वेंसी इमिट करते हैं। हम रिमोट दबाते हैं तो रेजोनेंस करा देते हैं। अब उस सेट कर दिया गया, रेडियो में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। रिमोट दबाते हैं, सीधे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है, फला चैनल आ जाता है। यही रेजोनेंस का एप्लीकेशन। LCR सर्किट हर जगह लगा हुआ है, टीवी में भी लगा होता है, रेडियो में भी लगा होता है, मोबाइल में भी है। तो ये इसका एप्लीकेशन।